knows Pooja as a mother. My husband knows Pooja as a wife. My in-laws knows Pooja as the घर की बहू. Because उसकी अपनी खुद की एक अलग ही identity है besides playing these roles. Hello everyone. Today I have with me Pooja Sablok, who is not only a good friend but has maintained a beautiful life between being a homemaker and the outside world. I love the way she brings her whole essence as a homemaker, where she is in a joint family with her in-laws, her child, her husband and her brother-in-law, and the way she maintains the balance between that world and the outside world is commendable. गर्ल्स का आज पेशेंस एंड एडजस्टिंग फेज थोड़ा कम हो रहा है. बच्चा जो है अगर उसकी माँ ही नहीं उसे समझेगी तो और कौन समझेगा. मैं दुनिया से नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो उसको समझे. आई थिंक आई विल एक्सेप्ट इट बिकॉज एसेंशियली वो मेरा DNA. हम परफेक्ट हैं हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा हस्बैंड परफेक्ट हो, हमारे इन लॉज परफेक्ट हो, या फॉर दैट मैटर मेरा बच्चा परफेक्ट हो. थोड़ा अपने लिए एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ग्राउंड बना के आई थिंक देन मैरिज कम्स इन. मुझे तो ऐसे लगता है कि आज इवन अ मैन वुडंट नीड अ वुमन टुडे. अ वुमन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू ट्रीट हर. हेलो एवरीवन. आज हमारे साथ हैं मिसेस पूजा सबलोक, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड और वंडरफुल मदर, superb wife and a homemaker. So she's here to share her journey with us. वो एक हाउसवाइफ से एक होम मेकर तक की जर्नी जो हम सब तय करते हैं. बट फ्रॉम यू पूजा. Hi friends, it's a pleasure to be here amongst everybody. सो मुझे ये बता कि when did you get married? Year 2002. Wow. And initially what was it like? It was an arranged settlement and जैसे हर एक लड़की की जर्नी होती है फ्रॉम द पेरेंट्स हाउस इन एन अरेंज सेटअप टू अ डिफरेंट हाउस, एंड रातों रात तुम्हारी पूरी वर्ल्ड बदल जाती है. बिकॉज अगर सपोज जैसे मेरे इन लॉज हैं, अगर मैं उनको कहाँ मिलूँ या कोई फंक्शंस में मिलूँ, इफ़ दे आर नॉट माई इन लॉज आई वुड टर्म देम एज अंकल एंड आंटी. बट 12 घंटे में एक लड़की की जर्नी हो जाती है. देर इज़ एन अनदर सेट ऑफ पेरेंट्स that she has to imbibe in her, accept them as a new set of parents. So how was it like? How did you address them in the beginning? Straight वैसे ही? Yes, बिल्कुल straight वैसे ही. Because arranged marriage, and I'll tell you that time, आज का टाइम में बहुत फ़र्क है. वो टाइम जो था it was you know जैसे मेरी फैमिली भी जो थी, and I have an elder sister who was married before me, and I have seen her being accepted in her joint family where she got married. So I have seen that arranged marriage system in my family. So it was an easy transition though. But yes, definitely अगर एक घर से दूसरे घर अगर आज सपोज मैं अपने घर से अपनी चाची के घर या अपनी नानी के घर भी जाती हूँ, उधर भी एडजस्टमेंट्स, बिकॉज हर घर का सिस्टम अलग है. तो उधर भी देर इज़ डिफरेंट सिस्टम, वहाँ पे भी डिफरेंट सिस्टम होते हैं. तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज के सेटअप में यू हैव टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ द न्यू हाउस. So tell me something. अगर आज you feel कि your little one, your son, would you want to do an arranged marriage? आई डोंट थिंक सो टू बी ऑनेस्ट. आज के टाइम में अरेंज मैरिज का जो फैब्रिक है वो प्रेवलेंट है, मुझे लगता नहीं है. बट येस, अगर मेरा बेटा इफ़ ही डजेंट believe in choice marriage, or if he doesn't get the right partner, if he chooses, then definitely I will have to search for an arranged marriage for him, provided if he is ready for marriage. Ready and happy. True. So tell me one more thing about your child again. Why I'm coming to children first is because I think as a homemaker, as a housewife, we stay in this whole arrangement mainly because of that. What do you think? हाँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग रोल इन द जर्नी ऑफ मी बीइंग अ होम मेकर इज़ द रोल ऑफ अ मदर. दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग दैट हैज़ एवर कम अक्रॉस, एंड it is most fulfilling.
And when you say it's fulfilling, what do you mean? I mean, fulfilling as a woman. You feel more complete being a mother, definitely. So it's a fulfillment, right? Because biologically, I'm a woman. Biologically, I am bound to have motherly instincts within me. Right. Tell me something कि नहीं लगता कि अगर शुरू से ही हमको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता, क्योंकि हमको कोई ये चीज़ें बताता नहीं है, यू नो, एज अ लेडी, एज अ गर्ल, हमको कभी ये नहीं बोला जाता कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ और दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू चेंज, और यू मे जस्ट नॉट रिमेन जस्ट अ वाइफ, जस्ट यू नो अ डॉटर इन लॉ और जस्ट अ मदर. ये इतना ज़्यादा बड़ा रोल है, इसकी एक अपनी ही जर्नी है. सो शुरू में जब आपको बताया नहीं गया तो हाउ डू यू फील, कि डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट? ये तो मुझे लगता है कि हर फैमिली में कोई भी लड़की को नहीं बताया जाता, बट एक जो लड़की अपनी मदर को देखती है, जैसे जैसे बड़ी होती है उस एनवायरनमेंट में वो बहुत सारी चीज़ें देखती है अपनी मम्मी को, एज शी इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ अ डॉटर इन लॉ, मदर, वाइफ, सिस्टर इन लॉ. सो देर आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. लेकिन उसके साथ एक बहुत अहम पहलू हमारी लाइफ का ये भी है, बिसाइड्स वी बीइंग प्लेइंग दीज रोल्स, एक हमारा रोल, अब जैसे अभी मैं हूँ, अभी मेरा एक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि दैट एसेंशियली माई कोर, राइट. वॉट एग्जैक्टली इज पूजा ऑल अबाउट. आज तुम पूजा को कोई, अभी जैसे मेरा बेटा नोज पूजा एज अ मदर, माई हस्बैंड नोज पूजा एज अ वाइफ, माई इन लॉज नोज पूजा एज द घर की बहू हमारी, बट एग्जैक्टली पूजा का भी एक अलग पहलू है, बिकॉज उसकी अपनी खुद की एक अलग ही आइडेंटिटी है बिसाइड्स प्लेइंग दीज रोल्स. और इसीलिए आप आज यहाँ आए हैं, Yes, टू शेयर दिस होल जर्नी. आई वॉन्ट टू एक्चुअली टेल, लाइक आस्क यू कि ये पूरी जर्नी कैसे रही, बिकॉज इट्स बिन अ गुड 20+ years. Yes. You have a 19-year-old child who is, I mean, you know, 19 साल. It's a journey. Yeah, From like basically doing just the house things. पहले जब हम जाते हैं हमें किचन सौंप दिया जाता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे और चीज़ों के डिसीजंस हम ले सकते हैं, पर इवेंचुअली वी जस्ट टेक इट लाइक अ होल थिंग, लाइक घर हो गया, किचन हो गया, बच्चे हो गए, इन लॉज हो गए, सभी कुछ संभल, हर समय बस सब यू नो हर किसी का कुछ ना कुछ वो होती है. एंड द फुलफिलिंग एलिमेंट, लाइक जो फुलफिल करता है, दैट एलिमेंट इज़ द बहू ऑफ द हाउस. ठीक है, वो तो, पर वो आती है एक हाउस वाइफ की तरह, पर उसकी जो जर्नी होती है, लाइक इट्स नॉट एन ईजी जर्नी. इट डेफिनेटली इज़ नॉट अ जर्नी. अभी वनीता, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, आज अगर आप प्लेन में बैठ के अपने बेटे को मिलने न्यूयॉर्क जा रहे हो, ठीक है, आप जर्नी लेते हो फ्रॉम बॉम्बे टू न्यूयॉर्क, ऑलमोस्ट 22 hours, राइट. इज़ दैट जर्नी ईजी? नो, It isn't. No. So similarly, this journey from a housewife to a homemaker also has its ups and downs. उतार चढ़ाव definitely है इसके भी, but it's a journey, right? Right. So because at the end of the day, as I said, कि the most fulfilling thing for me being a woman is that motherly instinct. And today when I see my 19-year-old blossoming up, that is the most. It's like a, you know, like you've reached somewhere. Right. It's a destination. जैसे कि तुम एक मकाम पे आ गए हो, आगे और भी बहुत कुछ करना है, बिकॉज ये जर्नी नेवर एंडिंग है टिल द टाइम हमारी सांसें हैं. ऑल्सो टेल मी कि नाउ ऋषि, आई नो हिम सिंस लॉन्ग, Yeah. सो डू यू थिंक यू नो हिम इनफ? I could say after 21 years of marriage, still I would say there is a lot of things that I don't know about him. But I'm sure he also doesn't know a lot of things about me as well. Right. Because to know each other, to know two humans in a relationship, two humans in a relationship called marriage, and human as a self is a very never-ending institution. Right. When did you take up your makeup course? When did you think it was, you know, you needed to take up a different course?
just to, क्या था, what was the thought behind it? और द थॉट सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक पुशिंग फैक्टर था बिकॉज मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था एंड ही वॉज बिकमिंग इंडिपेंडेंट. ही वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी. जैसे बच्चा आ रहा है, मैंने उसको अपने हाथों से खाना खिलाना है. एंड प्लस उसके स्कूल टाइमिंग्स भी बड़े हो जाते हैं बिकॉज बच्चा जब नर्सरी में होता है तो छोटी क्लासेस में होता है तो 2-3 घंटे क्या होता है. देन बीइंग अ मदर टू अ स्मॉल चाइल्ड इज़ अ फुल टाइम जॉब. सो वो मेरे लिए सबसे बड़ा पुशिंग फैक्टर ये था टू गेट इन टू मेकअप एंड टू रियलाइज एंड उसको मेरे पैशन को अनलीश करना एंड टू मेक इट. येस, इट वॉज माई पैशन. मेकअप डेफिनेटली इज़ माई पैशन. तो राइट टाइम पे मैं उसको तभी कर पाई जब भी मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था एंड मेरे पास काफ़ी टाइम था. डिड यू एवर थिंक कि वो आप पहले कर सकते थे व्हेन यू वर अनमैरिड? और बिल्कुल मैं कर सकती थी बट आई हैव कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली जहाँ पे वर्किंग एंड प्लस वो टाइम भी अलग था जहाँ पे माई डैड वुडेंट लाइक मी वर्किंग आउटसाइड और परस्यूइंग समथिंग विच आई वॉन्टेड टू. आई टू हैड सम एस्पिरेशंस एज अ कॉलेज गोइंग गर्ल but my dad definitely wouldn't approve that time. But yes, in today's time, if I see a lot of fathers and mothers supporting their girl child to pursue their dreams. Wow. Because I think abhi times have changed. Yeah, they have. Yeah. Times have changed, but I don't think things have changed. थोड़े से बेटर हुए हैं, बट अभी तक हैव यू सीन हाउ मैनी divorces, how many this are happening because हमारे जो टाइम थे उसी तरीके के पेरेंट्स अभी तक जो अपब्रिंगिंग में चल रहे हैं. सो times have changed, children are changing, these are the indigo kids, these are kids who are thinking differently from the normal stereotype. Yes. पर आपको नहीं लगता कि हम उनको वैसे ही ब्रिंग अप नहीं कर रहे हैं, हम उनको वही वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं, सो उस वजह से ऑल्सो दिस इज़ हैपनिंग? वैल्यूज़ तो मुझे नहीं लगता. देखो, हम आज पेरेंट्स की, कोई भी माँ बाप की वैल्यूज़ और अपब्रिंगिंग को डाउट नहीं कर सकते. हम वो बिल्कुल नहीं कर सकते. हाँ, सोसाइटी ऑन द होल जजमेंटल ज़रूर है, मैं आपको ये बात डेफिनेटली बताऊँगी. आज के दौर में और हमारे दौर में ये फ़र्क डेफिनेटली आ गया है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़र्क आज गर्ल्स में आ गया बिकॉज आज प्राइमरीली गर्ल्स आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो उसमें क्या हो गया, उसमें जो एडजस्टिंग नेचर इन मैरिज है. बिकॉज देखिए, आप कोई भी रिलेशनशिप आप पकड़ लीजिए, एडजस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स. बोथ द साइड्स. ऐसा नहीं है कि एक लड़की ने ही एडजस्ट करना है या एक लड़के ने ही एडजस्ट करना है. एडजस्टमेंट्स, आज एक लड़की की शादी होती है, लड़की का एडजस्टमेंट है, लड़के का भी एडजस्टमेंट है बिकॉज उसको भी बैलेंस बनाना है बिटवीन हिज न्यू वाइफ एंड हिज पेरेंट्स. जो इन लॉज हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी एक एडजस्टमेंट है बिकॉज जो मदर इन लॉज, सो कॉल्ड मदर इन लॉ जो है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज है. वो अपना किचन शेयर कर रही है, वो अपने बेटे को देख रही है एक नए रूप में. सो एडजस्टमेंट्स इज़ फ्रॉम एवरीवेयर. लेकिन आज के इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये लगता है कि गर्ल्स का आज पेशेंस एंड एडजस्टिंग फेज थोड़ा कम हो रहा है. एंड मेरे हिसाब से द डिवोर्स रेट्स इसके लिए ज़्यादा हाई हैं प्राइमरीली बिकॉज दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. So you think your dad also should have got you to be financially independent? Yes, I definitely do feel that today. Right. If I look back now, initially तो मुझे नहीं समझ आया बिकॉज जैसे मैंने बोला, मैं एक बिजनेस फैमिली से थी तो मैंने वो वर्किंग कल्चर देखा ही नहीं था. बट येस, मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी, दे हैड परस्यूड आफ्टर द ग्रेजुएशन, दैट वन वाज अ CA, सो शी वाज वर्किंग. मुझे तभी भी नहीं वो चीज़ अंदर आ रही थी. जैसे मैंने एक दो बार डेफिनेटली अपने डैडी से बात की थी, बट माई डैड वॉज नॉट ऑफ दैट बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ कंजर्वेटिव पंजाबी फैमिली. बट आज व्हेन आई लुक बैक, सो आई डेफिनेटली फील येस, वो टाइम पे एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे मिलती, वो डेफिनेटली वुड हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प. So you come from a joint family? Yes, I come from a joint family. And you got married in a joint family? Yes. So it wasn't so difficult to adjust? No. If you see from joint family aspect, that transition was smooth because I was born and brought up in a joint family and I got married in a joint family. So what do you think nuclear families से आने से मतलब एक व्यूज़ अलग हो जाते हैं या एक बंदा अलग हो जाता है? Yes, yes. मेरा पर्सनल व्यू ये है, आई कैन बी
different because I'm talking about my experience. I definitely feel if you come from a nuclear family, the adjusting nature कम होता है. Okay. जॉइंट फैमिली तुमको परसिवरेंस सिखाता है, Okay. तुम्हें पेशेंस सिखाता है, अलग अलग टेम्परामेंट के लोगों से डील करना तुम्हें सिखाता है, Very important. और तुम्हें समझने की एक क्षमता देता है कि सामने वाले का परसेप्शन क्या है. अगर आज मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे 1 मिनट लगता है समझने के लिए कि इस बंदे का भी कोई परसेप्शन है, तो उस परसेप्शन से मुझे बोला गया. Right. और न्यूक्लियर फैमिली में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. आई थिंक ये एक बहुत बड़ा, आई फील टुडे एंड इवन आज अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट Oh है. yes, that's true. बिकॉज एक बच्चे के लिए बड़ा होना अपने दादा दादी के साथ, अपने चाचू के साथ इज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड रैदर दैन एक बच्चे ने एक न्यूक्लियर फैमिली में होना जिसमें खाली एक मम्मी डैडी हैं और उनके वीकली विजिट्स हैं टू ग्रैंड पेरेंट्स हो गया या वो हो गया. Right. But that talks a lot about you because if you see क्या कहते हैं जो बच्चे जो बच्चे नहीं ये चीज़ें इम्बाइब कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या जो बच्चे नहीं ब्रिंग अप होते हैं इतने सारे लोगों के साथ, उनका बिहेवियर ऑब्वियसली अलग होता है. पर हैव यू एवर फेल्ट कि अगर कभी बच्चा नहीं एडजस्ट कर पा रहा है एंड ही कम्स टू यू, व्हाट डू यू थिंक यू हैव टू से? सबसे पहली चीज़ वनिता मैं आपको ये बोलूँगी कि मुझे लगता है बच्चा जो है ना, बच्चा एक ऐसा मोल्ड में होता है कि तुम, और माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उस बच्चे को मोल्ड करने में. तो अगर आप मुझे ये टर्म बोलोगे ना कि बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा, मेरे लिए इट इज़ अ चैलेंज कि मेरा बच्चा अगर आज है ऐसा, वो क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहा. मैं उसको मैं उसकी मदर हूँ, मैं उसको एक मदरली गाइडेंस के साथ मैं उस बच्चे को कैसे ढाल सकती हूँ. तो बच्चा तो एडजस्ट कर ही लेता है बिकॉज बच्चा बहुत ही रॉ होता है. आई थिंक एवरी चाइल्ड और हर माँ को मालूम है उसका बच्चा कैसे एडजस्ट हो सकता है. ये एक मदरली इंस्टिंक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मदरली इंस्टिंक्ट. सो बेसिकली यू ट्रस्ट योर अपब्रिंगिंग, 100%. है ना? बट आर यू टेकन फॉर ग्रांटेड अदरवाइज? टेकन फॉर ग्रांटेड तो हम ऐसे बोल By सकते the हैं बाय द चिल्ड्रन. बाय द चिल्ड्रन. येस एट टाइम्स डेफिनेटली. बट उसका भी रीज़न मैं आपको दे सकती हूँ. उसका भी कारण ये है कि वी मेक आवर सेल्व्स टेकन फॉर ग्रांटेड. I won't say that we make ourselves taken for granted. I feel हम गिवन करने देते हैं और गिवन करवा लेते हैं. जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपका बच्चा ये नहीं पढ़ना चाहता, सो आप क्या करोगे? ये तो मेरे साथ हुआ है. इनफैक्ट हमने ये फेस किया है. आफ्टर 10th मेरा बेटा वॉज एट क्रॉस रोड्स. उसे नहीं पता था उसे क्या परस्यू करना है. आई वॉज कमिंग अप, येस आई वॉज कमिंग अप विथ ऑल द पॉसिबल जो मुझे समझ आ रहा था. इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग है या फूड टेक है या ये है फलाना है. आई वॉज कमिंग अप विथ ऑल द थिंग्स, लेकिन मेरे बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या करना है. सो फॉर दैट मैटर मैंने उसको 10th के बाद साइंस फील्ड में डाला बिकॉज देन इट वुड हैव बीन एन ईजियर जॉब बाय द टाइम 12th में आता और वो करता. सो बाय द टाइम वो 12th में आया, he told me that he wanted to do sports management. Okay. So in today's time also, it's a very unconventional line. Yeah, and it's also very contradicting. Yes, from it's a what very you- contradicting. So this has happened with me. ये मेरे साथ हुआ है. तो जब ये बात उसने मुझे बोली, I was like okay, because मेरा बेटा स्कूल से काफ़ी स्पोर्टिंग था. He was into sports all the time. So I had seen his journey and I had seen his interest. सो उधर ये प्रॉब्लम आई वो टाइम पे. इनिशियली मेरे हस्बैंड को एक हिच था बिकॉज उसने बोला स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अगर इसने करना है तो क्या करियर एस्पेक्ट है, क्या फ्यूचर है, वाई नॉट गो इन टू फूड टेक बहुत अच्छा है, फूड टेक्नोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी इसका स्ट्रॉन्ग था. बट इवेंचुअली मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ समझ में आ गई कि आज का टाइम ऐसा है कि आज बच्चे का जो पैशन है इट कैन टर्न इन टू अ करियर. That's true. तो मेरे लिए yes I can see my whole team. so yeah Wonderful. so
it was a challenge that time, though it was this thing. I've definitely, then my husband also supported my child, which was absolutely right thing to do, and he had faith in him also as a father. Okay, fine, you know, let us give him a free hand and let him try his sports management जो वो हमें बोल रहा है. So that was a journey I have faced. Yeah. Nice. So, what do you think if tomorrow your child feels that he is, gay or a homosexual? How would you take it? How do you think that, आप इस चीज़ को, will you take it okay? How will you, मतलब, what would be your reaction in the I first place? think I would take it in my stride. मैं समझूंगी, बिकॉज एसेंशली मेरा बच्चा जो है, अगर उसकी माँ ही नहीं उसे समझेगी तो और कौन समझेगा. मैं दुनिया से नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो उसको समझे. आई थिंक आई विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज एसेंशली वो मेरा डीएनए है. और अगर आज वो मुझे कुछ ऐसी अनकन्वेंशनल चीज़ बोलता है, विद द सोसाइटी स्टिल हैज़ जजमेंट्स अबाउट इट, मुझे लगता है आई शुड स्टैंड एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर माई चाइल्ड. What if he wants to get married to somebody who you don't like or you think is, because coming from very traditional families, it's very difficult to take care of these things. Plus joint family, इतने सारे लोगों के views, इतने सारे लोगों के, they are judging you all the time. How do you think you will take care of that? आई थिंक वो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हमारे बच्चों की लाइफ के हैं, जैसे करियर, जैसे अभी उसका सिलेक्शन ऑफ पार्टनर, ओके, इन सब चीज़ों में पेरेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत है. आई विल डेफिनेटली बी inviting and supporting him if he wants to have a girl or a spouse of another caste or another religion or what. वही चीज़ यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगी, इन स्पाइट सपोज, अगर सपोज मेरे इन लॉज को कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे कि नहीं ये लड़की ठीक नहीं है, ये, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट सेम थिंग कमिंग फ्रॉम देम, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ जनरेशन दैट इज़ ओल्डर टू मी. मुझे मेरे बच्चे को सपोर्ट करना ही है, नो मैटर वॉट. And provided if he is 100% sure of that girl, that has to be What do there, you the think sense his of commitment. What do you think his father would do? I mean, would he be as cooperative? He is in fact more cooperative than what I am. Wow, that's That's a story. That's commendable. Yes, he is in fact more easygoing than what I am. And what about when you got married? Like, was he okay with you? Because again, it's a journey. Yeah, of course. I think जब एक अरेंज मैरिज में शादी करके लड़की आती है तो उसके लिए सारे ही लोग इक्वली स्ट्रेंजर्स हैं, हस्बैंड भी और वो भी इन लॉज भी. लेकिन वहाँ पे एक हस्बैंड का की रोल होता है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द गर्ल. एक लड़के का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसकी जर्नी है टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, एंड आई थिंक आई वॉज वेरी लकी इन दैट एस्पेक्ट. Did you always, मतलब जो उनके दिमाग में था, you were always like that? Like, if जैसे कहते हैं ना कि आपको अपने तरीके की लड़की कभी नहीं मिलेगी. लड़के, men always come up with that. You are never going to find the woman you have desired or you have thought about. और बट अगर आप ये चीज़ अब मुझे बोल रहे हैं तो आप मुझे एक चीज़ बताइए ना कि क्या एक लड़की को भी अपने हिसाब का लाइफ पार्टनर मिलता है? इट्स वाइस वर्सा, राइट? सो इट इज़ अबाउट एडजस्टमेंट्स, इट इज़ अबाउट what you have, find the plus points of what you have with you. Only then you can make peace with it. आज I know so many girls like of my age who had got married, and जब newly married हुए थे तो when we used to talk amongst ourselves about husbands or something like that, तो कई लड़कियां, मतलब मेरी फ्रेंड्स बोलती थी मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, मैं तो यश चोपड़ा की मूवीज़ में ऐसे देखती थी, ऐसे करता है वो, स्विट्ज़रलैंड में ऐसे उसको ये करता है वो करता है. So, there were some preconceived notions lot of girls used to have, and they used to fix it कि नहीं हमारा पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, हमारा पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए. इट्स अ, ये preconceived notions हैं. And I'll tell you something, वनीता, आज nobody is perfect. क्या आज हम परफेक्ट हैं? परफेक्ट तो पहले भी नहीं थे. हाँ, आप सोचो क्या आज हम परफेक्ट हैं? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा हस्बैंड परफेक्ट हो, हमारे इन लॉज परफेक्ट हो, या फॉर दैट मैटर मेरा बच्चा परफेक्ट हो?
नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप मुझे बोलो कि आज आप सर्वगुण संपन्न हो और आप परफेक्ट हो और आप बहुत गॉडली हो, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मुझे ये लगता नहीं है। फर्स्ट सबसे पहले तुम अपने अंदर देखो तुम क्या हो। बट फिर भी do you think you would have been what you are today living in this family? आप कुछ तो बन गए होगे, राइट? लिविंग इन एनी पर्टिकुलर फैमिली, वेदर इट इज सो, तो क्या आप वैसे हो जैसे आपको लगता था कि आप एट दैट टाइम यू आर, कि देयर वर चेंजेस, कि आज जो आप हो इज व्हाट यू आर मेड? नहीं, डेफिनेटली आज मैं जो हूँ इज़ वॉट आई एम मेड थ्रू माई जर्नी। जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने लोगों का नज़रिया देखा है। बिकॉज़ शादी से पहले तुम बहुत एक ककून लाइफस्टाइल में रहते हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत एक प्रोटेक्टिव शेल में रखते हैं, वो तुम हो। लेकिन धीरे धीरे जर्नी जैसे एक औरत की बढ़ती है, उससे आस पास के लोगों का जो ट्रीटमेंट उसकी तरफ होता है, लड़की वो ही बनती है। इमोशनली उस चीज़ को टेक केयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। यस, तो वहाँ पे अगेन मैं आपको बोलूँगी कि द जर्नी फ्रॉम अ हाउसवाइफ टू अ होम मेकर जैसे है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। पहले मैं बता रही हूँ, पहले जो मैं इमोशनली वल्नरेबल थी, जैसे मैं बहुत ईज़िली बुरा मान जाती थी, बहुत सेंटिमेंटल थी, टची थी काफ़ी चीज़ों के बारे में। अब आई हैव टेकन इट एज अ वे ऑफ लाइफ। अभी मुझे एक चैलेंज लगता है कि ओके अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट। एंड आई थिंक ये सब चीज़ें सीख कर तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, या तुम उस रट में पड़े रह सकते हो। ट्रू। कि मेरे साथ बट मेंटेनिंग योर इंडिविजुअलिटी बिकम्स अ चैलेंज, नहीं? मेंटेनिंग योर इंडिविजुअलिटी इज़ अ चैलेंज, आई थिंक। ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस अपना एक जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, जो पूजा है, क्या वो पूजा रही? डेफिनेटली नॉट। मैं वो नहीं हूँ जो मैं आज 2002 में थी, वो बिल्कुल नहीं हूँ। बिकॉज़ ये जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं सीखी हूँ, तो मैं वो पूजा नहीं बची हूँ। अगर मैं नहीं सीखती, अगर मैं गिरती उठी और मैंने तय कर लिया कि अभी ये जर्नी चलो, अगर मैं गिरी हूँ, चोट लगी है, तो इस चोट को मुझे ठीक करके आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली मैं वो नहीं हूँ जो मैं आज 2002 में थी। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और वो बहुत सारे चेंजेस आने का कारण ये भी है कि पहले सिर्फ मैं एक पूजा नाम की एक लड़की थी, ठीक है। अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है कि मैं अभी एक मदर भी हूँ, तो वो एक रोल चेंज डेफिनेटली आता है। एंड प्लस बिकॉज मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चा he definitely looks down on a mother, he looks upon on the mother, कि उसकी माँ, वो बच्चा शायद कुछ आपसे शेयर नहीं करे, आपका बेटा भी है, शायद आपसे शेयर नहीं करे, लेकिन वो बहुत चीज़ें दिन में ऑब्जर्व करता है अपनी माँ के बारे में। यस, और आई नो बिकॉज मेरा लड़का है, आपका भी एक लड़का है। आई थिंक लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव और वोकल नहीं होते हैं, डॉटर्स ज़्यादा वोकल होती हैं। तो मुझे लगता है मेरा बेटा, मैं नोट करती हूँ कई बातों में कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देता है जो मैंने कभी की नहीं, लेकिन वो उसकी ऑब्जर्वेशन है। टू सी मी कि मम्मी क्या कर रही है सुबह से लेकर रात तक, व्हाट इज़ हैपनिंग विथ हर, और क्या हो रहा है। तो चेंजेस तो डेफिनेटली आए हैं। सन्स फर्स्ट लव, या डेफिनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट। या सो टेल मी, इन लाइक नाउ दैट यू, how would you feel if your son said he doesn't want to stay with you, शादी के बाद मैं जा रहा हूँ? See Vanita, I'll tell you, I am actually open for this, for the fact, मुझे आज ऐसा नहीं लगता। देखो, मैं आज अपने बच्चे को बड़ा नहीं कर रही इस एक्सपेक्टेशन से कि बच्चा मेरे साथ रहेगा जब मैं सीनियर सिटीज़न होंगी या मेरे बुढ़ापे में साथ रहेगा। मैं उसको इस हिसाब से बड़ा नहीं कर रही हूँ। माई ड्यूटी इज़ टू मेक हिम अ गुड ह्यूमन बींग। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सक्सेस इज़ वेरी सब्जेक्टिव,
ओके कितना बच्चा आज मेरा सक्सेस पाता है मॉनेटरी वाइज या कितना, इट्स वेरी सब्जेक्टिव टुडे, बट एसेंशियली आई स्ट्रेस दैट ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग. और अगर उसे लगता है कि विथ लव एंड रिस्पेक्ट ही वॉन्ट्स टू सेपरेट आउट बट मेंटेन द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स, आई एम गेम फॉर इट. What if he doesn't maintain the love and respect for his parents? वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और वो भी वापस सब्जेक्टिव है. वॉट इफ़ ही डजेंट, बच्चा ऐसा क्यों रिएक्ट करता है? Because then there is not only one woman in his life, there are two women in his life. Yes. You have your Yes, mother, you but- have your wife. बट वनीता, आप सिर्फ ये चीज़ सोचो कि कोई भी लड़का ऐसे क्यों स्टेप लेता है कि उसको अपने माँ बाप से के साथ नहीं रहना है, मतलब प्यार और रिस्पेक्ट से नहीं, आउट ऑफ फाइट्स या लड़ाई झगड़ों के बीच में उसने, बिकॉज उसको भी बैलेंस बनाना है. और वो कब ऐसा होता है जब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे. पर क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बैलेंस कैसे बनाया जाए? बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्या हैव यू एवर फोकस्ड ऑन दैट कि ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? आज जो एक बहुत ही टिपिकल मदर है या एक बहुत ही पोजेसिव मदर है, वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. सो व्हाट डू यू थिंक? ऐसे कई बच्चे हैं इस दुनिया में जो अपने माँ बाप को छोड़ के अलग फैमिली रह चुके हैं, अलग अलग जगहों पे सेटल हो चुके हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये हमारे साथ नहीं हो सकता, या फिर अगर ये होगा तो ये कैसे होगा? बिकॉज हमने तो अपनी जर्नी वी हैव टेकन केयर ऑफ इट टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट व्हाट अबाउट देम? हाउ डू वी हैंडल देम? नहीं, यहाँ पे तो यही एक चीज़ आती है, अगर बच्चा डिसाइड करता है कि उसको अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना है और उसको अलग रहना है, वनीता ये बात वही आज के रुक जाती है. सपोर्ट डेफिनेटली, एंड I will definitely not want to be maybe in the future that I want to be possessive, because मेरे बच्चे की अपनी लाइफ है, उसकी अपनी डेस्टिनी है. एंड प्यार बहुत बड़ी चीज़ है. एंड प्यार सच्ची में बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली actually attain a lot with your kids when you यस. just bring them मुझे down. आज लगता है तुम प्यार से, आज सपोज़ अगर तुम एक जॉइंट फैमिली में हो, अपने प्यार से तुम डिफरेंसेस विथ योर इन लॉज या विथ योर फैमिली ओवरकम कर सकते हो, तो क्या तुम प्यार से अपने डिफरेंसेस अपने बेटे के साथ ओवरकम नहीं कर सकते हो? एंड प्लस वो तो तुम्हारा बेटा है. पर वहाँ पे थोड़ा सा वो भी आ जाता है कि ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा. आई थिंक मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ इसमें. Oh, lovely. आई एम अ लिटिल डिफरेंट इन दिस. नाइस. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि वहाँ बैलेंस कैसे स्ट्राइक करना है, तो वो तो बेचारा एक इसकी तरह हो जाता है, बॉल की तरह कि कभी. अच्छा, आप मुझे वनीता एक चीज़ बताओ, आज जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि आपके अंदर थोड़ा ये नहीं आएगा कि ये मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, ये चीज़ तो आपके हस्बैंड ने भी फेस की होगी, ठीक है? लेकिन जब आप वाइफ थे, आप समझिए, जब आप वाइफ थे तब आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करे, और जब आप एक मदर इन लॉ बन जाते हो तब आप चाहते हो कि आपका बेटा आपको सपोर्ट करे. तो क्या वो जो लड़की आई है, जो आपकी सो कॉल्ड डॉटर इन लॉ है, वो नहीं चाहेगी जो आज से बहुत साल पहले आप चाह रहे थे कि मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करे? सो इज़ द सेम थिंग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, राइट? अग्रीड. नो डाउट. आई मीन ये कहानी तो चलती रहेगी आई थिंक बच्चों के साथ की. सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट दिस कि आप मुझे बताओ, हाउ इज़ मेकअप एंड हाउ डिड यू एक्चुअली गेट दिस फीलिंग कि मुझे ये मेकअप ही करना चाहिए, या वॉज इट द मनी दैट ड्रोव यू कि नहीं, इसमें आई विल बी एबल टू मेक मनी ऑल्सो एंड आई विल बी एबल टू पैशन भी फॉलो कर सकूँगी? क्या आपने कुछ और सोचा कि मैं ये नहीं ये कर लूँ? नहीं, सबसे बड़ा मेरे लिए मेकअप परस्यू करने का ड्राइविंग फोर्स था, वाज माय पैशन नंबर 1. मनी अगेन इज़ सब्जेक्टिव मुझे, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसे मॉनेटरी वो नहीं इश्यूज़ आए कभी भी लाइफ में. आई हैव बीन लकी, एंड प्लस अगेन दिस थिंग, आई एक्चुअली हैड लॉट ऑफ फ्री टाइम, एंड प्लस इट्स अ फ्रीलांसिंग जॉब. आई वुडेंट, मैं 9 to 5 जॉब में अपने आप को सेट नहीं कर पाती, बिकॉज एसेंशियली मैंने आज से पहले मैंने कभी लाइफ में काम ही नहीं किया. वो टिपिकल ऑफिस गोअर का जो टाइम स्लॉट होता है, मैंने वो नहीं किया था.
तो ये फ्रीलांसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, बिकॉज इनिशियली जब मैंने ये स्टार्ट किया तो देयर यूज्ड टू बी टाइम्स जब मुझे मेकअप ऑर्डर्स मिलते थे और वो टाइम पे मेरे बच्चे के बोर्ड्स थे, तो आई कुड रिफ्यूज़, बिकॉज वहाँ पे मुझे लगता था माई सन नीड्स मी मोर एट दैट टाइम. तो फ्रीलांसिंग एस्पेक्ट जो इस जॉब का था, दैट वाज वेरी इनवाइटिंग फॉर मी. प्लस माय पैशन तो डेफिनेटली जो मैंने आपको बोला नंबर 1, सो दैट ड्रोव मी टू मेकअप. So, when you are going for your makeup or for the makeup class, or as a freelancer, you are going out to do your stuff, does your house suffer at all? I mean, you know. Nahi, not really. No. My house doesn't suffer And much. how do you take care of that? I take care, I manage everything. एक So that टाइम is- मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज देखो एज अ हाउस मेकर अगर तुम अपना टाइम मैनेज करके अपनी सारी ड्यूटीज़ ख़त्म कर देते हो, एसेंशली देखिए आज हमारे जैसे घरों में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फूड एस्पेक्ट, ठीक है. बाकी सब के लिए तो तुम्हारे पास स्टाफ है ही है. आज हमारे जैसे लोगों के पास फूड एस्पेक्ट इज़, अगर वो इज़ टेकन केयर ऑफ और वो अगर तुम अपना ड्यूटी और अपनी प्रायोरिटी समझ के उसे ख़त्म करते हो, फिर तुम्हारे पास अपने लिए बहुत टाइम है. एंड देन आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि तुम भी एट द बैक ऑफ द माइंड यू फील गुड. तुम आपको एक कंप्लीटनेस लगती है कि चलो मैंने अपने काम कर लिए, नाउ अभी ये टाइम है इज़ टू फॉलो एंड परस्यू थिंग्स दैट आई लाइक. सो दिस इज़ आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. So, other than just freelancing as a makeup artist, what else do you like to do? Because it's a world beyond the house now. Yeah. For a lady, it has Yes. become a world beyond the house. जैसे housewife तो ठीक है. It's like a house lizard. Okay. But as you get into that new journey, कि आप हर चीज़ देखने की कोशिश में रहते हो, उसमें आपने दोस्त भी बनाए, एंड यू नो अक्वेंटेंसेस हैं. कभी आप ऐसी जगहों पे जाना होता है जहाँ आपको जाना नहीं है, पर लाइक एक माता की चौकी, जहाँ रियली इट मे नॉट बी योर इंटरेस्ट, बट यू नो. सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ थिंग्स लाइक दैट? आई वुड मैं ऐसे समझूंगी कि जैसे कई चीज़ें हैं जो मेरे इंटरेस्ट, देखिए हर चीज़ तो मेरे इंटरेस्ट की नहीं होगी. अगेन इट सम्स अप टू के एडजस्टमेंट्स एंड हाउ फार आर यू गोइंग टू डू दैट एडजस्टमेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. देखिए अगर आप एक चीज़ में एडजस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें आपका मेंटल वेलबींग प्रोटेक्टेड रह रहा है, देन देर इज़ नो हार्म टू डू दैट एडजस्टमेंट्स. लेकिन येस देयर कैन बी डिफरेंट वुमेन कमिंग अप विद डिफरेंट एडजस्टमेंट्स जिसमें वो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका मेंटल वेलबींग, उनका फिजिकल वेलबींग हर्ट हो रहा है, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. अभी मेरे लिए ऐसी चीज़ें करना जिसमें मेरा मेंटल वेलबींग सेन है एंड आई एम हेल्दी, वो एडजस्टमेंट्स करने में कोई हार्म नहीं है. आई थिंक इट्स अ बैलेंस. राइट. हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक यू नो, बिकॉज पहले तो फ्रेंड्स भी नहीं करने देते थे. जब हमारा ज़माना होता था ज़्यादातर फ्रेंड्स भी नहीं करने देते थे हमारे माँ बाप. अच्छा ठीक है, 2-3 जनों के साथ जो अलाउ किया. बट हाउ इम्पॉर्टेंट आजकल तो इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज everything relies on good friends and everything relies on your friends. So what do you think, like, you know, do you get time for your friends from your home? Yes, abhi I have a set of my friends from last 42 years. Wow, They are my that's a school long friends. Yes. बीच में हमारा एक गैप डेफिनेटली आया था बिकॉज सब बहुत बिजी थे अपने अपने घरों में, बच्चे छोटे थे. बट अभी नाउ एक हमारे सबके घरों में एक डेलिबरेटली सबको समझ में आ गया है कि ये जो गर्ल्स हैं, once a year we have a trip together. It's a all girls trip where we rewind, rejuvenate, and eventually हमारे सबके, वी आर सेट ऑफ 5 गर्ल्स एंड इवेंचुअली हमारे सबके घरों में अभी नाउ देर इज़ एन एक्सेप्टेंस लेवल कि हाँ एक साल में ये गर्ल्स ने इकट्ठे होके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो कोर ग्रुप है, इन्होंने जाना है. तो इट्स एन एफर्ट, यू हैव टू पुट एन एफर्ट टू डू दैट. एंड मुझे लगता है आज जो एक औरत की जो आइडेंटिटी है, एक वुमेन की जो आइडेंटिटी है, और जो यस वो घर तक सीमित नहीं है. बहुत से कलर्स हैं, बहुत से शेड्स हैं उसमें,
वो आपको पिक एंड चूज़ करने हैं, प्रोवाइडेड यू आर नॉट हर्टिंग एंड नॉट डिसरिस्पेक्टिंग पीपल अराउंड यू. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये चीज़ आपके साथ होगी तो आपको भी नहीं अच्छी लगेगी. Right. But did you ever find a reason to get, a little comfort from any other element other than, it could be any other element. Uh, Sometimes we are hurt, sometimes we're emotionally not, लड़ाई हो गई घर पे and, you're not. So did you ever feel the need to get comfort anywhere else, maybe in a close friend, maybe in another relationship or ever like that? हाँ, आई थिंक ये तो देखिए, दिस इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी. आई फील दिस कि यू कैन फाइंड, अभी जैसे मैंने आपको बताया जो मेरी सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं, लाइक वी नो ईच अदर सिंस स्कूल टाइम, 42 ईयर्स टुडे, 42 और 43 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली. तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि टू हैव सच फ्रेंड्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंटल वेलबींग, बिकॉज आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद अपनी सिस्टर से शेयर नहीं कर सकती या मैं अपने ब्रदर से शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स से शेयर कर सकती हूँ. फ्रेंड्स का मतलब ही यही है कि दे विल लिसन टू यू विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. What is your take on kitty parties? I mean, हमको बचपन में तो हमेशा सिखाया गया था कि that is some place that you should never go. What is your take on it? मुझे लगता है कि किटी पार्टीज इज़ नॉट ओनली अबाउट बिचिंग, Right. बिकॉज दिस इज अ प्री कंसीव नोशन कि किटी पार्टीज में यही होता है, बहुओं की बुराइयाँ हो रही हैं या सासों की बुराइयाँ हो रही हैं या जेठानी देरानी की बुराइयाँ हो रही हैं, ठीक है. बट मुझे, इफ़ आप मेरा पर्सनल व्यू लोगे, मुझे लगता है किटी पार्टीज ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैब्रिक ऑफ अ सिस्टम फॉर वुमेन हु आर होम मेकर्स, बिकॉज इस बहाने औरतें 10 अलग औरतों से मिलती हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एंड एसेंशली तुम तैयार होके जाते हो, बन ठन के जाते हो, विच आई फील इज़ वेरी थेरेपेटिक. वो बहुत बड़ी थेरेपी है आज एक औरतों के लिए, हमारे जैसे होम मेकर्स के लिए, कि तुम रेडी होके तैयार होके, इट्स अ फील गुड फैक्टर. Right. तो माई टेक ऑन किटी इज़ you should have a circle if you come across a kitty thing, and it adds to your mental well-being if you keep the protocols intact. अच्छा, एक होम मेकर जो होती हैं वो सिर्फ ये जो 6 लोग हैं आपके घर के, उनके अलावा देर इज़ एन आउटर सर्कल अदर देन योर फ्रेंड्स ऑल्सो, देर इज़ एन आउटर सर्कल. हाउ डू यू थिंक वो उनको हेल्प कर सकती है इमोशनली या मेंटली, या जैसे अभी कोई यू हैव relatives who are younger kids or teenagers or even so, how do you think you can help those people by talking to them or by guiding them, or do you think they also look up to you somewhere? I think Have so. you ever encountered anything in your family like that, or in your friends, or मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में डेफिनेटली ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, बिकॉज देखो, आई विल टेल यू समथिंग हियर वनीता, कि मैंने एक चीज़ अपनी ये जर्नी में सीखी है. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. दैट वॉज इंटैक्ट मेरी शादी से पहले, एंड आई यूज टू बी द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ऑफ माई फैमिली. तो ये जो एक एलिमेंट है ना, समवेयर डाउन द लाइन, इन स्पाइट ऑफ मेजर अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, जो हमारी सबकी लाइफ में होते हैं, नॉट ओनली विथ मी, वो चीज़, वो एलिमेंट को ना मैंने छोड़ा नहीं. तो आई थिंक दैट हैज़ बीन अ क्राउनिंग ग्लोरी, यू कैन से, बिकॉज अभी लाइक जब हम फ्रेंड्स भी मिलते हैं हु नोन मी थ्रू डोंकीज ईयर्स, इतने साल 42 ईयर्स से हम जानते हैं एक दूसरे को, दे ऑल्सो डू टेल मी, वो एलिमेंट मैंने नहीं छोड़ा है अपना. दैट आइडेंटिटी एसेंशली, पूजा जो एक एक महफिल की रौनक थी या मज़ा आता था उसके आने से, वो चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है. नो मैटर कितना भी अप्स डाउन आए, तुम गिरे हो, तुम्हें चोट लगी है, पर नेक्स्ट मोमेंट पे तुमने उठना है, बिकॉज दिस वॉज द कोर दैट जो मेरे मॉम डैड ने भी हमें सिखाया,
जो हमने उनको भी देखा, जो हम उनसे भी सीखे कि उनकी लाइफ में भी कितने अप डाउन्स थे, कितना कुछ हुआ है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन दे वर बैक ऑन देयर फुट स्ट्रॉन्ग. You were in college when your mom was facing cancer, right? No, my mom was facing cancer after college when I delivered my son. Oh, So so that that must be again very. yes, that was a very big blow because everything ended in 6 months. So I had just delivered, मेरी just delivery हुई थी, तो तब की बात है. एंड हमें पता चला था लास्ट स्टेज कैंसर है एंड हमारे पास खाली 6 months है. So, what would you like to tell the viewers ki how they can take care of, their parents, whoever go through these, like they have to be a little more nice to them, or they have to be a little more. किस तरीके से आप उनको बताओगे कि कैसे वो मतलब they should take care of their parents when they are facing any kind of illnesses, or because it's something very uncalled. I mean, कभी भी किसी को भी हो सकता है, right? Yes, yes, yes. तो I would tell all the viewers over here कि whatever time you have with your parents now, spend with them, be with them, because ये stage पे they really need, they might not tell you because हम बहुत busy हैं अपने अपने schedules में, but they will definitely not tell you as parents, but be with your parents, guys. Yeah, because when they are gone, You don't know उनके पास कितना टाइम है, कब क्या हो जाए. Everything is very uncertain. And as children, we obviously look, as with that security होनी चाहिए, and as when they're alive, it's so much like कि वो हमारे लिए, Yes, they're there because for us. I lost my mom very early. I lost my dad 5 years back. Right. And ऐसा था कि मेरी मम्मी के बाद my dad played the dual role of a mother also. And हमें ना वो कमी नहीं महसूस होने दी मेरे डैड ने. बट आफ्टर माई डैड गोइंग जो एक वैक्यूम आया है दैट कैन नॉट बी फिल्ड विथ एनी थिंग. यू रियली फील कि तुम्हारे सर से सच्ची एक हाथ उठ गया है. ऐसा है विद बोथ द पेरेंट्स गोइंग. इट इज़ absolutely an altogether different feeling. So what is different? I mean, did Uncle Ji call you or every day, or he looked? Yes, we used to have daily calls. My dad would call me daily. हर रोज़ बात होती थी मेरी, every day without fail. बहुत सी चीज़ें हम शेयर करते थे ऑन कॉल. सो वो ख़त्म हो गया. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो वो चीज़ हो गई कि मम्मी भी नहीं थे एंड डैड भी चले गए. सो दैट वाज अ वेरी बिग वॉइड. बहुत बड़ा वैक्यूम था. Somewhere you feel कि dad should have, उन्होंने काश वो मेरे साथ ये एक चीज़ कर लेते थे, काश वो मुझे ये एक चीज़ सिखा जाते थे. वो तो मुझे हर टाइम लगता है. आज भी लाइक इट्स बीन 5 साल हो गए हैं मेरे डैड को. आज भी कहीं घर में दिन में छोटी छोटी चीज़ों में मुझे उनका ख्याल आता है. मुझे लगता है हाय काश पापा होते तो मैं ये कर सकती हूँ उनके साथ. काश वो होते तो मेरे लिए ये कर देते हैं. बिकॉज जो चीज़ माँ बाप तुम्हारे लिए कर सकते हैं ना वहीदा, वो चीज़ और कोई नहीं कर सकता. कोई भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए. यस. I hope our children feel the same way about us, because I mean, not that they should stay with us or be with us all the time, but somewhere we should leave that mark के बट वो होगा. आप ऐसे क्यों सोचते हो? मुझे लगता है कि अगर आप सपोर्टिव हो अपने बच्चों के, अपने बच्चों को समझते हो एंड आप उन्हें अपना प्यार देते हो और आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप प्यार से उनको सही और गलत की सीख दो, तो डेफिनेटली वो भी करेंगे. आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है आपने अपने बच्चों को प्यार से बताना है. बिकॉज लव कैन कॉन्कर एवरीथिंग. ट्रू. कैन यू ऑल्सो शेयर विद द व्यूअर्स, जैसे हमको बहुत लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है एज अ हाउस वाइफ और एज अ होम मेकर, हमको बहुत लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. हाउ डू यू सेव मनी, और बाय ज्वेलरी, सेव मनी एंड keep it aside for yourself, or however, I mean, not only you, maybe you got it from
you inherited it, but there are many viewers जो inherit नहीं करते हैं, जो so how do they compound their stuff? Do you have anything to share with them? आई थिंक जैसे अभी आपने थोड़ा टाइम पहले मुझे किटी पार्टीज़ की बात की, तो किटी पार्टीज़ का एक ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है हर औरत के लिए कि दे सेव मनी, उनके पैसे जुड़ते हैं व्हेन दे स्टार्ट गोइंग फॉर किटीज़, एंड प्लस एक सेविंग एंगल होना चाहिए। जैसे अभी हमें भी जो मंथली एक्सपेंस जो मिलता है उसमें से सर्टन एक्स अमाउंट आप सेव कर लो, एंड वो बूंद बूंद से बनता सागर, राइट? आपको पता नहीं चलेगा वो आपका अमाउंट कब कितना क्या हो जाएगा। कंपाउंडिंग यू विल नेवर नो, and it's very important even for kids these days. It's very important. Compounding is a very important. yes. So what would you like to share? Do you think anything that you think the viewers should know as women, to start in early stages of their life, शुरुआत में ही, जो हम बहुत बाद में सीखे? यस, आज के टाइम में तो मुझे लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई थिंक उसके बाद मैरिज कैन कम इन। टुडे आई एसेंशियली डू फील दिस बिकॉज ये मेरे को मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक लगता है कि जो मैंने लेट किया है, आज हर लड़की ने एजुकेशन लेके थोड़ा अपने लिए एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ग्राउंड बना के, आई थिंक देन मैरिज कम्स इन। जबकि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे द सिस्टम वॉज टोटली उल्टा। हम लोग सीखे, हम लोग को समझ में आया है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत लेट, और हमने किया बहुत लेट। ऐसे लेट्स पुट इट दिस वे कि हमने किया बहुत लेट, बट आज के टाइम में डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि एक लड़की के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो ऑफन हम लोग एक हाउसवाइफ या एक होम मेकर को बहुत मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि ये तो जस्ट लाइक शी इज़ अ हाउसवाइफ। यस, ये तो मैंने बहुत लोगों से सुना भी है कि बोलते अच्छा जैसे अभी कोई फ्रेंड्स आ गए या हम इंट्रोड्यूस हुए हैं एक फ्रेंड से, वो बोलेंगे आपकी वाइफ क्या करती है? ओह शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ। ठीक है, हम ऐसे सुनते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत क्वेश्चन मार्क लगती है वो टाइम पे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ? आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाउस वाइफ करती क्या है? इनफैक्ट वो आपसे डबल काम कर रही है। सुबह 6 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक शी इज़ कंटिन्यूसली ऑन हर फीट। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एक जो होम मेकर है वो सिर्फ खाना बनाती है या बच्चों को संभालती है। इट्स नॉट दैट, क्योंकि आज की लड़की, आज की जो होम मेकर्स का दायरा बहुत बढ़ गया है, और वो हर एक चीज़ लड़की घर बैठकर होम मेकर कर सकती है जो आज आप बाहर जाके काम कर सकते हो। ट्रू, बट फिर भी बहुत अंडरवैल्यूड एंड अंडरपेड जॉब है। लाइक इट्स अ वेरी अंडरवैल्यूड जॉब, डोंट यू थिंक? कि अंडरवैल्यूड तो येस, अप्रिसिएशन क्वोशंट बहुत कम है, इनफैक्ट है ही नहीं, मैं आपको ये बोल सकती हूँ। अंडरवैल्यूड तो येस, एज अ वुमेन, एज अ होम मेकर, इट्स डेफिनेटली इज़ एन अंडरवैल्यूड। कई बार ऐसा लगता है कि मैंने ये किया, या मैंने इस तरीके से फाइनेंसेस में हेल्प किया, या मैंने इस तरीके से घर में काम किया, या मैंने 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए या 6 लोग एक्स्ट्रा आ गए, खाना बनाते समय भी कभी चू नहीं की। आज मेरे बेटे की पढ़ाई के साथ में मुझे इतने सारे और काम करने पड़ रहे हैं। कहीं पे भी हमें वो कंसेशन मिलता नहीं है कि कोई बात नहीं है, आज बच्चों का एग्ज़ाम है, आज खाना मैं बाहर से मंगा लेती हूँ या ये कर लेती हूँ, या सो वी आर वेरी वेरी आई वुड से हमको उस तरीके का पैट नहीं मिलता ऑन आवर बैक दैट वाओ यू डिड ब्रिलियंट। आई मीन तुमने इसके साथ ये भी संभाल लिया। डोंट यू फील लाइक दैट? बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये हो गया है ओवर द ईयर्स कि वाई एम आई लुकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स? वाई? इनिशियली तो डेफिनेटली जब तुम यंग होते यू वांट वैलिडेशन फ्रॉम योर पीपल, बट अब जो मेरी जर्नी हुई है और जो मैंने सीखा है फ्रॉम अ हाउस वाइफ टू अ हाउस मेकर, कि मैं वैलिडेशन क्यों मांग रही हूँ लोगों से? जब तक मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, आई नो कि I don't need any validation from anyone. Do you also think you don't need a man today?
नो नॉट रियली. मुझे तो ऐसे लगता है कि आज इवन अ मैन वुडंट नीड अ वुमन टुडे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन इज योर मोस्ट कंपैटिबल स्पाउस एंड पार्टनर. इफ यू हैव योर स्मार्टफोन, you have everything. I agree. I mean, I think I totally agree on that. But I think, no, you do need a man. Of course you do need. I'll tell you something. ये तो this is just jokes apart, just kidding. मुझे लगता है कि yes, for that security, not only for a woman, even for a man, a woman is needed Agreed. to regulate him, to modulate him, to inspire him, to be a strong emotional wall. मुझे लगता है कि a man is emotionally weaker than a woman, I agree. and a woman is much much emotionally stronger. So when a man is emotionally weak, a woman comes in a picture, whether वो फिर उसकी mother हो या उसकी wife हो या friend हो या sister हो. That role is essentially played by a woman. But still it's an undervalued, very undervalued job. But as a homemaker, like हम लोग का जैसे दायरा बढ़ रहा है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, हम सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहे, हम बाहर अपने फ्रेंड्स, हमारा काम और बहुत कुछ, लाइक यू नो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने बहुत सारा चेंजेस देखा है. सो मेनी women have got introduced into this whole journey. So what do you think कि where do you see women from today? You think they are going to do good? ऑफ कोर्स मुझे तो अभी ये लग रहा है, जैसे देखो अभी जो जो एक फेमिनिज्म का मूवमेंट आया है, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गो स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आज एक वुमेन की रिकग्निशन is there even in our armed forces. There are lots and lots of women who have come on the borders, who are there in the armed forces, who are flying the Rafales also for our country. So definitely this feminism movement is there and it's up for the keeps, for sure. True. What is the advice you would like to give our guests and our viewers? My advice today to all the viewers who are watching us is, if you essentially talk about a woman, my personal say is, a woman is a reflection of how you treat her. So always if you feel कि you're not liking कि what a woman is doing, वो woman कैसे act कर रही है या उसका behavior क्या है, pause for a minute and think that how you are treating her, you will get your answers. Yeah, like they say that what you got was the raw material. Yes. And what you shaped and sculpted out of her as a wife, as a homemaker, is not only your journey, but it is your creation. It is totally up to a man how he wants his wife, his ardhangini, his it's not only a wife, it is a friend, and it is the person that you are going to make eventually out of her. She will start thinking like you, she will start behaving like you, and yes, you have to be very very supportive towards her in the journey of this whole thing, because वो भी अपना घर छोड़ के आई है, वो भी अपना अपने अरमान, अपने इतने सारे ख्वाहिशों का त्याग करती है in this whole journey of being just like the way you do it. You could have got a better woman, I'm sure, but however, this is I think every man's this के मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छी मिल जाती. बट आप वनीता, आप अगर ये मुझे बोलते हो कि एवरी मैन, डोंट यू रियली थिंक कि ये हर औरत का भी यही है जो हमने डिस्कस किया है पहले, कि डजंट दिस अप्लाई टू अ वुमन ऑल्सो? इट डज. वो भी ऐसे सोचती है कि शायद मुझे इससे बेटर मिल जाता, शायद मेरी लाइफ बेटर होती, बट ऐसा नहीं है. तुम्हें जो मिला है दैट्स योर डेस्टिनी. मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. एंड I think flowers, I can also say one thing, in this journey of a homemaker, ये जो garden है, there are more weeds than flowers. Let's put it this way. So right time पे the weeds needs to be chucked out, like as we take care of our garden, and you will see definitely the flowers blossoming. You need to have a lot of patience. You think those weeds really go? They don't grow back? They don't come back? No, it's a constant.
ये कांस्टेंट एफर्ट है तुम्हारी तरफ से दैट यू विल नीड टू कीप ऑन चकिंग आउट द वीड्स, plucking out the weeds and throwing them away. Yeah, if you want to make a beautiful home out of Yes. yeah, true. Although whatever you may say, it's a very long journey. And yeah, जैसे आप एक हाउसवाइफ की तरह आते हो और आप उसका पूरा घर का पूरा चेंज कर देते हो, everything is all changed and everything It's a long journey. आज से 20 साल पहले जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज 20 साल बाद मैं वो नहीं हूँ. एंड आई एम श्योर इफ़ आई लिव 20 years more, I definitely will not be what I am today. So it's an ever inspiring, ever learning journey and it's a never ending. You need to keep learning. आपने सीखना है बहुत कुछ आगे. आप सीख चुके हो लेकिन आपने और भी बहुत कुछ सीखना है. What are your plans? Like, what do you think other than makeup? Would you want to do something else? And would you want to, take up some other course or take up some other something that you didn't learn as a child? Like, I have a friend who never swam and just recently learned swimming और वो बाहर गई और उसने बहुत सारे अंडर डाइविंग कोर्सेज एंड अंडर डीप सी डाइविंग कोर्सेज और ये सब किए एंड शी जस्ट फेल्ट वेरी कंप्लीट बिकॉज शायद वो उसकी ख्वाहिश थी या उसकी journey incomplete थी without that, and very supportive husband, so because of which she could do it. So what do you think? You have any plans ahead? Not really. I have any more plans in my mind अभी तक ऐसे कुछ. But let's see. जैसे जैसे journey life की unfolding है. But I am open to learning. Definitely. It's very inspiring for the guests or the viewers to keep seeing us grow and to keep seeing us doing more things and not fearing कि हम ये कैसे करें. वो एक फियर हर लड़की में होता ही है. तो ये चीज़ उनको निकालनी है. Yes, वो बहुत important है. And believe in yourself and you will be there. You will get to your destination, you in this journey of life. Most important thing is believe in yourself as a woman. To all my fellow women who will be seeing this, I would really like to say this: love people around you, because love is the most important thing that can conquer the hardest and the hardest of any journey. And believe in yourself. वो जो faith है, वो जो belief है अपना, आपने उसको छोड़ना नहीं है. बिकॉज ऐसे इंस्टेंसेस भी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे जब आपको लगेगा कि मेरा तो ये बिलीव था, इट्स नॉट वर्किंग. ऐसा नहीं होता है. उससे क्या होगा, आप बिटर होगे, आपके अंदर एक कड़वापन आएगा. उससे आपने नहीं पलने देना. एज आई सेड, वो भी एक वीड है हमारे गार्डन का. आपने उस कड़वेपन को पलने नहीं देना है. आपने अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, इंटैक्ट रखना है. एंड I'm sure one day everyone will get through their journey and realize what they wanted, they have achieved. Also, my message to most women who are housewives, homemakers, mothers, look after yourselves. Look after your body, look after your health. जितना आप ख्याल अपने बेटे का, अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, अपने हस्बैंड का रखते हैं, उतना ही ख्याल आपने अपना रखना है. Look after your health. It's very important. With every child, you have lost a lot of things of your body. It's very important कि आप उसको रिवाइव करो, उसको हेल्दी रखो, हंसता खेलता रखो. If you are happy, everything around you is going to be happy. If your husband is happy, that's not about it. If your mother-in-law is happy, that's not. Make yourself happy. Make everybody happy. It will bring everybody happiness eventually. Yes, ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक चीज़ वनीता आपने बोली है. अगर आप खुश हो तो आप अपने आजू बाजू लोगों को खुश रख पाओगे. अगर आप ठीक नहीं हो, आपकी मेंटल वेलबींग ठीक नहीं है, आपकी फिज़िकल हेल्थ ठीक नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ना आप अपने बच्चों को ठीक रख पाओगे, ना आप अपने हस्बैंड्स को देख पाओगे, ना आप अपनी सो कॉल्ड फैमिलीज़ को देख पाओगे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर टुडेज़ वुमेन. सबसे पहले आपने अपनी मेंटल वेलबींग एंड फिज़िकल वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो, आप तभी ही अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हो. यस. So what is your most memorable thing in this whole journey of being a homemaker? आपकी कोई एक चीज़ तो होगी जो बहुत memorable है, which has taken you given you that happiness every day of your life.
मेरे लिए मोस्ट मेमोरेबल जर्नी में जो इंसिडेंट्स आए हैं, आई थिंक इज़ द रोल ऑफ मी बीइंग अ मदर, बिकॉज एज माई चाइल्ड हैज़ ग्रोन अप आई हैव बीन spent each and every moment with him, which I feel कि अगर मैं career woman होती, I might have missed those moments of with my child as he was growing up. So that has been very fulfilling and very emotionally, you can say, giving me a umpteen amount of satisfaction. कि I can today really say, today my child is 19, I can say that I have brought my child up And made the most of independently and made the most of it. I think that has been the most fulfilling experience for me. Like, I get to hear a lot of this from my own child, that you know, you could have done wonders, mom, you were so good at this and you could have studied more and आप ये कर सकते थे. But believe me, I think yes, that journey has been so beautiful, where I feel every day was different. Every day there was a new learning, every day there was a new seeing of from when they were a seed to when they are. And I think एक और चीज़ पता है, they, it's the most unheard clan about kids, बच्चों का, it's a seed, he is a seed. Seed, yeah. आपने एक फार्मर को देखा है, वो अपनी सीड को कितना संभाल के रखता है, Right. यू नो, वो सीड उसको किस तरीके का प्लांट देने वाली है, इस वजह से ही इज सो केयरफुल अबाउट हिज. सो यस, फॉर द चिल्ड्रन हु हैव होम मेकिंग पेरेंट्स, माई होल टेक इज that you know, value them because they have spent half their lives just shaping you guys up and making you wonderful kids. It's not an easy journey. It's a very 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 long, आपकी आधी उम्र ज़िंदगी निकल जाती है इस चीज़ में. But I would say value them, value it. They didn't do it to bring, I mean, you know, so that they can कल को बोलो आपके लिए कुछ. But हाँ, they did it because of their own happiness. But just value it. It's beautiful. Yeah. I think that has been the most memorable experience of my journey so far. To see my child in each and every stage from childhood up to this teenage year where he is today. Also, women, when they come into these households, कच्ची मिट्टी होती हैं. Shape them up well. Bring them to your expectations. That is only your job. They can't do it. They are just raw material. So shape them. Make them beautiful human beings. आप जैसा करोगे आपको वही मिलेगा. सृष्टि का नियम. Yes. Law of nature तो यही है, right? Right. What goes around comes around. True. So सास भी बहू थी. Yeah. As I said earlier. Right. Any message that you would want to give the audience apart from what we have spoken and how we have addressed to them? Well, this has been my first podcast. I would like to say I thoroughly enjoyed this experience with a very, very nice friend of mine, Vanita Jaisingh. And I have known her since 17 years. Wow. And our journey starts 17 years down the line. And I remember meeting her when her son and my son were like exactly on our laps. Yeah. So the journey for both of us has been very inspiring, and we have had our own share of discussions, minus the Lots of camera, them. lots of them at lots of different times. And I would say one thing about Vanita over here. She is one of the women who really, really inspires me because of her love, her warmth, and her take on life in her journey, how she has accepted changes in her life. So she is very inspiring for me. Also my clothes. Of course. I have been doing a lot of clothes for you. So Yes. have your wardrobe there. Half, I think 3/4 of my wardrobe over here. So whenever I am wearing a new thing, my husband or my brother or anyone, this is made by Vanita. I said yes, definitely. There could be nobody else who could make this. So yes, definitely, she's a wonderful person. Thank you so much. It was amazing having you over. And
of that table, sitting on this couch and sharing a lot of your journey, lot of your experiences. It is very inspiring when women can share their journey with the youngers, with their own people. And ये misconceptions कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, like we spoke about kitty parties. It's all a process of growing up and growing into a being, you know, a nice person, a good homemaker, a good mom, a good wife, a good everything. Human being. Yeah, it's a pleasure for me too. Equally pleasure for me too, Vanita. It's been really nice, and I hope when this podcast reaches out to a lot of people, they would also relate to what we have spoken here as homemakers. That's all. We'll soon have a wall which has mugs that you could sign. So maybe in Oh, the that's nice. next podcast. Oh, for sure. I'll be there. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe to our channel. Don't forget to see it, and we'll get more of her soon. Thank you so much. Thank you so much for everything. Thank you so much. Thank you.